Good morning, students. Students, today we would be starting with class 12 statistics. As such, today is our first session that we are starting with statistics for this academic year. Plus, today is the first time that you are learning statistics from me. So I think it would be joy for us. Definitely you are going to enjoy when I teach you statistics in the same manner that you are enjoying the subject accounts. Friends, talking about class 12 statistics, I would say in all we are supposed to learn or understand 9 chapters. Yes, in all total 9 chapters is what we are supposed to go through throughout the year. We are supposed to learn only 9 chapters. Only 9 chapters. If we talk about accounts, we are supposed to learn or understand at least, I would say, 13 chapters. But if we talk about statistics, we have only 9 chapters. So talking about part 1, in part 1 we have 4 chapters, and talking about the level, I would say the level is comparatively very easy. In case if you are weak in statistics, make sure your focus should be on part 1. Part 1, there are 4 chapters, and the level of those 4 chapters is comparatively very easy. Talking about part 2, right? In part 2 we have 5 chapters. Again, I would use the word easy, but it will not be easy for each and everyone. हर एक स्टूडेंट के लिए easy नहीं रहेगा. It depends on how we can say attentively you are learning those 5 chapters. So friends, in all there are 9 chapters. 4 in part 1, 5 in part 2. The level of part 1 is very easy. The level of part 2, definitely it is easy, but you can consider it as a moderate. Okay. Now, as I have told you clearly that before starting any chapter, we will definitely take a look at the weightage of the chapter. So, talking about the weightage of chapter number 1, that is index number. We are starting with index number today. Talking about the weightage of the chapter, the weightage of the chapter is 12 marks. Yes, you heard it right. 12 marks का weightage है. So आप सोच लो कितना important chapter है आपके लिए. Friends, division देख लेते हैं 12 marks का. Section है MCQ 1, short answer 1, 2 mark का sum 1, 3 marks का sum 1, 5 marks का sum 1. So friends, total 12 marks का वेटेज बन जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो है इंडेक्स नंबर. यहाँ पे डेफिनेटली सम, यहाँ पे भी डेफिनेटली सम, यहाँ पे चांसेस सम के ज्यादा हैं, बट इन केस थियरी भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 110% वी कैन से 99% सम ही आएगा, क्योंकि आज तक मैंने जहां तक देखा है they always ask short sum over here. यहाँ पे वो क्या पूछते हैं, short sum पूछते हैं. So ज्यादातर इस चैप्टर की थियरी क्या पढ़नी है, सिर्फ MCQs और शॉर्ट आंसर्स के लिए थियरी पढ़ना है, बट नो डाउट फर्स्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा थियरी लर्न करना पड़ेगा. बाकी इस चैप्टर में जो थियरी का जो फोकस है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है. एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर सेक्शन बी को थियरी में डालेंगे, थियरी इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न इन डिटेल. So short answers or MCQ is what you are supposed to learn, we can say as a theory part. Apart from this, यहाँ पे सब सम्स ही आने वाले हैं. So आप कंसीडर कर लो, ये 10 मार्क के तो सिर्फ सम्स हो गए. So आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर आपके लिए कि आप 10 मार्क गेन कर सकते हो. And what I would say you, definitely 10 में से 10 आएंगे. Definitely 10 में से 10 आएंगे. I will teach you the trick. Okay, now starting with the chapter. चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इंडेक्स नंबर. सो इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले मीनिंग तो सीख लें. तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर के. इंडेक्स नंबर क्या होता है? सो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर अ गिवन पीरियड कंपेयर्ड टू इट्स वैल्यू इन द फिक्स्ड पीरियड इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. P0 को बोलते हैं प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 को बोलते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर. इंडेक्स नंबर का मतलब होता है P1 upon P0 into 100. सर ये क्या बोल गए सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला.
सर हमें तो पता ही नहीं चला सर ये डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल के बगैर तुमको पता नहीं चलेगा, वो मुझे पता है। तो डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन वन एग्जांपल। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल से होता क्या है, वी कैन रिमेंबर द कांसेप्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दैट इज द रीजन एज यू ऑल नो कि सर जब भी आपको सिखाते हैं तभी सर मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, बिकॉज यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बात करते हैं एग्जांपल की, बात करते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं अमूल मिल्क का। यस, अमूल मिल्क का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फ्रेंड्स करंटली हम 2020 में हैं, दैट इज हम 2020 में हैं, और हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स से अमूल मिल्क का जो प्राइस है ना वो 50 रुपीस है। ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अमूल मिल्क का प्राइस 50 रुपीस पर लीटर, रुपीस 50 पर लीटर वो अमूल मिल्क का प्राइस है। हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। डेफिनेटली 50 से ज्यादा है पर हम 50 कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स से मैं 2016 की बात कर रहा हूं। लेट्स से 2016 में अमूल मिल्क का जो प्राइस था वो था 40 पर लीटर, 40 पर लीटर। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि अमूल मिल्क का प्राइस कितना बढ़ गया 2016 से लेकर 2020 के कंपैरिजन में, बाय हाउ मेनी वी कैन से रुपीस द प्राइस ऑफ अमूल मिल्क हैज इंक्रीज। तो आप इजीली बता सकते हो सर 10 रुपीस सर बढ़ गया। बट अगर मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में पूछूं, इफ आई आस्क यू इन परसेंटेज टर्म्स कि सर बताओ, तो शायद से आप में से कुछ बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी हो। तो यहाँ पे आता है इंडेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में, राइट। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। डेफिनेशन को समझने से पहले, ठीक है, हम इसी एग्जांपल को फोकस करेंगे। Once we finish this particular example, then we will shift to the definition, and then definitely you can learn the definitions in a we can say very quickly because the concept becomes clear. ठीक है, 2020 में अमूल मिल्क का प्राइस क्या है 50 पर लीटर, 2016 में मिल्क का प्राइस क्या है 40 पर लीटर। ठीक है, अभी अगर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सामने यहाँ पे कुछ लिखा है P0, P1 और इंडेक्स नंबर। P0 का मतलब होता है बेस ईयर और P1 का मतलब होता है करंट ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि सर ये करंट ईयर क्या होता है और बेस ईयर क्या होता है। फ्रेंड्स करंट ईयर बताओ मुझे, करंट ईयर क्या है। फ्रेंड्स 2020 जो है ना वो मेरे लिए करंट ईयर है। 2020 इज द करंट ईयर। मेरे से करंट आज से नजदीक कौन सा ईयर है उसको हम बोलेंगे करंट ईयर। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे 2018 होता और यहाँ पे 2016 होता। तो फ्रेंड्स टुडे आज से नजदीक कौन सा है 2018, तो हम 2018 को करंट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एक है करंट ईयर और दूसरा क्या है बेस ईयर। बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर, फिक्स्ड बेस ईयर, पहले का साल। तो फ्रेंड्स 2016 को हम क्या गिनेंगे बेस ईयर। ठीक है, सो हमने ये डिसाइड कर लिया करंट ईयर क्या होता है और बेस ईयर क्या होता है। P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर और P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ 50 क्या है। आप मुझे बताओ 50 क्या है। फ्रेंड्स 50 करंट ईयर का प्राइस है तो हम उसको बोलेंगे P1, यानी P1 कितना है 50। और अगर मैं 2016 की बात करूं तो बेस ईयर है, बेस ईयर के प्राइस को हम क्या बोलेंगे P0। तो P0 क्या है। इसके बाद करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ढूंढना है इंडेक्स नंबर। सो आई एम फाइंडिंग आउट द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इनटू 100, यानी 50 अपॉन 40 इनटू 100। आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। फ्रेंड्स आंसर आएगा 125। सर इट मींस हमारा इंडेक्स नंबर 125 है। यस, आपका आंसर, आपका इंडेक्स नंबर है 120। उसके बाद हम ढूंढेंगे परसेंटेज चेंज। हम ढूंढेंगे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे ढूंढोगे, तो ये जो 125 है इसमें से कंपलसरी बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, रिमेंबर माय वर्ड्स, कंपलसरी आपको 100 माइनस करना है बिकॉज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 गिना जाता है। सो आंसर क्या आया 25। अब देख लो 2016 का प्राइस कितना था 40 प्लस 25% करो, आंसर आ जाएगा। 40 प्लस 25% करो, देखो 50 आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स व्हाट इज 25।
What is 25? 25 is the percentage change in the value of variable. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अमूल मिल्क। फिर ये क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वापस से समझा देता हूँ। ये P1 है, ये आपका P0 है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है वो आ गया 125। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? परसेंटेज चेंज ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? तो 125 में से कंपलसरी 100 आपको माइनस करना है, बिकॉज 100 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर। 125 माइनस 100, पूरा डिफरेंस कितना है? 25। फ्रेंड्स 25 क्या है? 25 इज द परसेंटेज चेंज, 125 इज द इंडेक्स नंबर। इफ एनीवन इज आस्किंग यू कि इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपको ऐसा बोलना है 125। बट इफ एनीवन इज आस्किंग यू द परसेंटेज चेंज, देन ओनली यू आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म देम कि 25 इज द परसेंटेज चेंज। ठीक है सर, हमको ये पता चल गया ना, यस और नो? ठीक। अभी हम फोकस कर रहे हैं इस डेफिनेशन, ठीक है, बिकॉज ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? अमूल मिल्क। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अमूल मिल्क, मैं ऐसे रखूंगा उसको, associated with any item, item तो अपना अमूल मिल्क है, for a given period, given period कौन सा है? 2020, compared to its value in fixed base period, fixed base period कौन सा है? 2016। यानी फ्रेंड्स हमको ऐसा बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल associated with let's say अमूल मिल्क for 2020 compared to its value in 2016 is called index number। फ्रेंड्स परसेंटेज चेंज क्या हुआ है? 2020 के कंपैरिजन, 2020 को जब हम 2016 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो अमूल मिल्क के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है? फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स करके हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इतने पार्ट्स कर सकते हैं। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल associated with any item for a given period compared to its value in fixed period is called index number। Very simple। Percentage change in the value of variable, part 1, associated with any item for a given period compared to its value in fixed base period is called index number। Friends, index number का सिंबल जो है ना वो है I, कैपिटल I। स्मॉल I लिखा है एग्जाम में तो फिर एक ही चीज की उम्मीद रखना, क्रॉस की, राइट नहीं दूंगा। कैपिटल I इज द सिंबल ऑफ इंडेक्स नंबर। सो फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर इज परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल associated with any item for a given period compared to its value in a fixed base period is called index number। P0 P1 आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। P1 का मतलब होता है करंट ईयर, आज से नजदीक का ईयर, और P0 का मतलब होता है बेस ईयर, कोई प्रीवियस ईयर। सो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। फ्रेंड्स, टुडे वी वुड बी एंडिंग आवर सेशन ओवर हियर ओनली because now we are supposed to start with the sums, right? We'll just cover few theory topics only because there is I will say there is we can say no much theory in this particular chapter, but definitely the theory that is important will be covered by me. Today we have learned the meaning of index number, and tomorrow we would be starting with two methods, that is chain based and fixed based index number. So friends, we would be meeting tomorrow. That's all for the session. Bye.